Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss another topic of the subject design and analysis of algorithm, that is string matching algorithm. In the previous lecture I have discussed about a naive or a standard string matching algorithm as well as the finite automation string matching algorithms. Today I will discuss another approach called Rabin-Karp algorithm. In the naive string matching algorithm, the running time was n into m, because what we are doing in that, basically what is string matching? String matching is we were given a text of length n and we were given a pattern of length m. Now what we have to do? We have to match each and every character of a pattern with a text and return when each character of a pattern matches with the text. Return the number of shifts which were required in the text in order to match a pattern with a text, right. In the naive and standard string matching algorithm, it took n into n time, whereas in finite automation matcher it took n time. That we have discussed in the previous lecture. Now we will discuss about another algorithm, that is Rabin-Karp. First we will tell you about what is string matching algorithm, a brief intro about that. String matching, we were given a text this of n characters and a pattern of length m. We were given a text of length n and we were given a pattern of length m. The problem are to find an integer s, that is the number of the valid shifts that are required in order to match each and every character of a pattern with each and every character of a text. So basically what we are saying is, the basic definition of string matching is that we were given a text of length n and a pattern of length m. Now we have to return the number of the valid shifts which were required in order to match, in order to have each and every character of a pattern matching with a text, right. That is the number of a valid shift we have to return. Agreed? This is the basic string matching definition, right. So in other words, to find an even p in t matlab what? P in t, pattern in a text. Pattern is a substring of a text, right. The item of p and t are the characters drawn from some finite alphabet, this and this. So basically we were given a text, we were given a pattern, we have to return a number of the valid shifts that will be required in order to match each and every character of a pattern with a text. So for this, the naive operation, that is the algorithms that will be used for solving the string matching algorithms are naive, finite automation, Rabin-Karp, Knuth-Morris-Pratt and Boyer-Murray. These are the 5 basic algorithms which we have to discuss about the string matching. In naive, what we will do? We carries on matching each and every character of a pattern with the text. If let us suppose there is a length of length 20 for the text and length 6 for the, let suppose there is a text of length 20 and there is a pattern of length 6. Now when we are matching first character of a pattern with the first character of a text, that is p1 t1, p2 t2, p3 t3, p4 t4, p5 t5, p6 t6. Now p6 and t6 character does not matches. So what we will do? We will shift a character of a text by 1. We will perform for shift 1. So what will happen now? We will match pattern 1 with the text 2, pattern 2 with the text 3, pattern 3 with the text 4. So this carries on and this carries on. This will, how much time this will take? Each and every time we are matching a slab of pattern with the text and shifting it by 1. So the number of the shifts multiplied with the pattern length. The number of shifts will be what? Let us suppose there is a length 20, there is a length of a pattern is as 6. So number of shift, how much number of shift will be possible? Number of shift will be possible will be 14, right. So n minus m plus 1 will be the number of shift. N is the text length, m is the pattern length. So n minus m plus 1 is the number of shifts that can be possible, into m will be the pattern that matches each and every character always. So basically हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? n minus m plus 1 into m. ये मेरी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी नेव की. नाउ
how the Rabin-Karp algorithm works in a string matching algorithm, how it reduces the complexity, how it provides a more secure system, right? This we will see. Now, first we will see the basic definition of a Rabin-Karp algorithm. Then we will see how it is different from Naive, because Rabin-Karp string matching algorithm calculate a hash value for a pattern. Please remember each thing very closely. It calculates a hash value of a pattern. Why it calculating the hash value of a pattern? In order to provide a more secure. Now, how security can be done in this? Let's suppose let's suppose this is a different approach from the text and pattern matching. Earlier, what we were given this is text and this is pattern. So what we will do? We will match this, and this. Let's suppose this character is not matching. Then what we will do? We will match this with this with this with this, and this with this. Let's suppose this is not matching again. Now what we will do? We will match this, and this. This carries on until there is a match. This is Naive or string matching algorithm. But in Rabin-Karp, what we will do? We will first calculate the hash value of a pattern. Now, hash value can be calculated. How hash values can be calculated? The characters which were given to us, we will take the ASCII value of that and then calculate the hash value of that. So, how hash value was calculated? So, whatever the characters which were given, we will store the hash values of that, we will store the ASCII value of that in the form of a numerical values, and then those numerical values we will simply calculate the hash function. Now, hash function is calculated in order to provide it a more secure function, right. So, how this is done, that we will see. Basically in this case what we were given with, there is a pattern maybe 3 1 4 1 5, there may be a text like this, there may be a pattern 2 6. So, how we will do? We will simply, there will be a mod value will be given to us, mod q, that is 4, whatever the q value will be given to us, we will simply calculate 36 mod 4, mod 13. So, it will return 2. So, what we will do, same length 2, then we will calculate 31 mod 13, it will return 5, then shift it by 1, 4 mod 13, it will return 1, then we will shift it by 1, 41 mod 13, it will return 2. Now, what happened? 41 returning 2 as well as 26 returning 2, the same mode values or hash values. Once the hash values matches, then we will match the characters. So, I will tell you the difference of this after discussing the definition, right. The Rabin-Karp string matching algorithm calculate the hash value of a pattern. Remember hash value of a pattern, as well as for each m character. Please remember each m character subsequences of text to be compared, right. पहले हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पैटर्न की और फिर टेक्स्ट के उतने ही कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे जो पैटर्न की लेंथ है, राइट। उतने ही कैरेक्टर्स को, जैसे मान लेते हैं पैटर्न की लेंथ 5 है, उसकी हमने एक हैश वैल्यू कंप्यूट कर ली, उसी लेंथ के टेक्स्ट की भी हम एक हैश वैल्यू कंप्यूट करेंगे और फिर दोनों की हैश वैल्यू अगर सेम है तभी कैरेक्टर्स की मैचिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसमें Rabin-Karp में इसने कैसे बेटर किया, बेसिक और नेव अप्रोच और स्टैंडर्ड अप्रोच से कैसे इसको बेटर किया। अब आप समझे, नेव अप्रोच में क्या है, पहले को हमने पहले से कंपेयर किया, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे, पांचवें से पांचवें, छठे से छठे को किया और छठा वाला कैरेक्टर पैटर्न का टेक्स्ट के छठे वाले कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा, हमने कहा भाई एक शिफ्ट कर दो, तो एक शिफ्ट करा, हम उसे कंपेयर करते चले जा रहे हैं बार बार, दैट इज अ स्टैंडर्ड और नेव मैथिंग, तभी वो n into m हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, नंबर ऑफ शिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय पैटर्न। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, हम कैरेक्टर की मैचिंग तब करेंगे जब हमारे हैश कोड मैच होंगे। समझना ध्यान से, हम कैरेक्टर्स की मैचिंग तब करेंगे जब हमारे हैश कोड मैच होंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम पैटर्न का एक जो भी पैटर्न गिवन है, हमारे पास कोई क्यू वैल्यू असाइन होगी इन ऑर्डर टू मेक मोर सिक्योर हैश फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उस पैटर्न का हैश वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो पैटर्न लेंथ है
उसी के हिसाब से हर टेक्स्ट लेंथ की हैश वैल्यू निकालते चलेंगे। टेक्स्ट की 5 लेंथ पकड़ी पहले, उसकी हैश वैल्यू निकाली, फिर एक बिट शिफ्ट करके उसके अगले की 5 की निकाली, फिर एक बिट शिफ्ट करके अगले 5 की निकाली, उसको कैलकुलेट करते रहेंगे और फिर ये देखेंगे कहां पे हैश वैल्यू सेम है। सीधी सी बात है, जहां हैश वैल्यू सेम नहीं है वहां कैरेक्टर्स पैटर्न के और टेक्स्ट के मैच हो ही नहीं सकते, और जहां हैश वैल्यू सेम है वहां दो पॉसिबिलिटी हैं कि स्पूरियस हिट हो या मैच हो। मैच मतलब जैसे ही हैश वैल्यू सेम आए आप पैटर्न के हर कैरेक्टर को टेक्स्ट से कंपेयर करना शुरू कर दो, कैरेक्टर्स मैच होने शुरू हो जाए, इसका मतलब दिस इज अ मैच। और अगर वैल्यू सेम आई है और पैटर्न और टेक्स्ट के कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, दिस इज अ स्पूरियस हिट। स्पूरियस हिट मींस दैट द हैश फंक्शन वैल्यू ऑफ गिवन m characters are same but the characters of text and pattern are different. Now we will see this. If the hash value are unequal, please remember, if the hash value are unequal, the algorithm will determine the hash value for the next m character sequence. अगर हैश वैल्यू सेम नहीं है, आप एक शिफ्ट करके अगले 5 पकड़ो, उसकी हैश वैल्यू निकालो, राइट? If the hash value are equal, the algorithm will analyze the pattern and m character sequence. ध्यान देना, analyze the pattern and m character sequence. m मतलब क्या है? m लेंथ है पैटर्न की, तो जो पैटर्न है उसको मैच करेंगे m कैरेक्टर सीक्वेंस के साथ। In this way, there is only one comparison per text, right? यहां पे क्या होगा, हमें बार बार मैच करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हैश वैल्यू सेम आई तभी मैचिंग होगी, तो नंबर ऑफ मैच हमारे कम हो रहे होंगे, बट ऑब्वियस कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम से कम मूव हो रही होगी, n इंटू एम से n की तरफ मूव कर रही होगी, क्योंकि कंपैरिजन ही हमारे एक हो रहे होंगे, राइट? इन दिस वे देयर इज ओनली वन कंपैरिजन पर टेक्स्ट सब सीक्वेंस एंड द कैरेक्टर मैचिंग इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन द हैश वैल्यू मैचेस। कैरेक्टर मैचिंग कब जरूरत होगी? जब हैश वैल्यू मैच हो रही होगी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस स्लाइड से हमारी सिर्फ इतनी है कि नेव की तरह जहां पे हम एक एक कैरेक्टर को मैच कर रहे थे वो ना करके हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हर कैरेक्टर के एस्काई कोड्स के थ्रू हम उसके हैश फंक्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने पैटर्न के हैश फंक्शन निकाल लिया, हैश वैल्यू, ऐसे ही जो पैटर्न की लेंथ है उसी के हिसाब से टेक्स्ट की लेंथ को पिक करते हो हर बार हैश वैल्यू निकालेंगे। दोनों की हैश वैल्यू अगर सेम नहीं आती है तो एक एक शिफ्ट करते रहेंगे, और अगर सेम आती है तो कंडीशन लगाई कि अगर सेम है तो हम कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, सेम नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है? तो यहां से हमने वो वाला टाइम बचा लिया कि बार बार मैच करे जा रहे हैं, और अगर सेम आ गई है तो फिर हम मैच करेंगे, और अगर पैटर्न और टेक्स्ट के कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो मैच कहेंगे, अदरवाइज स्पूरियस हिट कहेंगे। नाउ हाउ दिस वर्क्स वो देखना है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास सपोज वी हैव अ गिवन अ टेक्स्ट दिस 314152, प्लीज रिमेंबर 314152, दिस इज टेक्स्ट, राइट? और हमारे पास कोई पैटर्न है जिसकी लेंथ 5 है, राइट? तो पैटर्न हमारे पास गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास 5 है और Q की वैल्यू हमारे पास 13 है, राइट? तो अब ये कह रहे हैं कि T0, इनिशियली हम टेक्स्ट को T0 मान रहे हैं, पहले 5 कैरेक्टर्स को, ठीक है? हमने टेक्स्ट को T0 माना, दैट इज 31415। नाउ 31415 से हम अगले, भाई हमने 31415 का कुछ मोड 13 निकाल लिया, वॉट एवर द वैल्यू इज, राइट? अब नेक्स्ट अगर देखें तो अब यहां पे मान लो कि हमारे जो वैल्यू आई वो पैटर्न वाली वैल्यू से मैच नहीं हो रही, राइट? पैटर्न मान लो 5 है हमारा, जो हमने पैटर्न निकाल रखा है, उससे मैच नहीं हो रही। अगर वो मैच नहीं हो रही तो हम इसको एक शिफ्ट करेंगे, तो अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, 14512। तो यहां पे हॉर्नर्स रूल्स के थ्रू जो हमें फॉर्मूला गिवन है वो कैसे कर रहे हैं वो दिखाया गया है। बेसिकली T0 से जब T1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज अ डिजिट, 10 मल्टीप्लाइड बाई 31415, दैट इज T0। अब ध्यान देते चलना, H, ये दिस इज दिस फॉर्मूला, इफ वी सी दिस फॉर्मूला here, D means 10, H of I जो हमारा यहां पे पहले से टेक्स्ट गिवन है, दिस इज 31415, ये वाला टेक्स्ट माइनस, ध्यान देना, माइनस
हम क्या कर रहे हैं 10 इंटू 5। भाई इसमें से अगर माइनस करने की बात करें तो हमने डायरेक्ट माइनस करा 3। सिंपल इसको अगर देखें ना 10 मल्टीप्लाइड बाई 31415 माइनस इसकी सबसे पहली डिजिट कौन सी है? राइट, सबसे पहली वाली डिजिट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। एग्रीड। और इसके बाद प्लस जो डिजिट आने वाली है इसकी ये वाली डिजिट को 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे ये। तो अगर देखें इसमें क्या होगा, नेक्स्ट देखें 10 से मल्टीप्लाई करा, इसको इससे माइनस करा, विल बी व्हाट 1415 प्लस 2 और दिस विल रिटर्न 14150 प्लस 2 और दिस विल रिटर्न 14152, that is 14152. So this is the formula in order to have a shift from T0 to T1. Now this is basic Rabin-Karp-Matcher algorithm. How this works? T is a text, P is a pattern, D is a digit values we given to us, right? And Q is the mode value which is used for a hash function. N में हमने स्टोर कराया टेक्स्ट की लेंथ, M में स्टोर कराया पैटर्न की लेंथ, H हम कंप्यूट कर रहे हैं D की पावर M-1 मोड Q। M क्या है? पैटर्न की लेंथ, राइट। पैटर्न और टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर लिया विद 0, राइट। इसके बाद ये फॉर लूप चलाया यहां पे फॉर आई चेंज 1 टू M, पैटर्न लेंथ के हिसाब से। पैटर्न जितने लेंथ का होगा उतना ही टेक्स्ट लेंथ होगी। P में अपडेट कर रहे हैं DP प्लस PI मोड Q। DP प्लस PI मोड Q का क्या मतलब है? हम इस P में जो भी हमारा पैटर्न होने वाला है 23590 उसको एक एक करके ऐड कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं यहां पे? सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, पहले वाला पैटर्न DP विल बी इनिशियली विल बी 0 दिस, तो 10 दिस PI इज व्हाट, अगर मैं P1 की बात करूं, P1 पैटर्न का पहला कैरेक्टर आएगा, पहला कैरेक्टर मोड Q विल रिटर्न दैट कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट टाइम दैट विल बी मल्टीप्लाइड, next time it will carries on updating P and T0 values. Once P and T0 values are considered in a block of M character subsequences, then there is a shift 0 to n-1, right? When there is a shift of 0 to n-1, if we see if P is equal to TS, अगर पैटर्न टेक्स्ट से मैच हो रहा है तब पैटर्न और टेक्स्ट के एक एक कैरेक्टर को मैच करेंगे, पैटर्न अगर विद शिफ्ट S, और अगर नहीं हो रहा है तो S लेस देन n-1 है, मतलब शिफ्ट हैं, और नेक्स्ट टेक्स्ट के कैरेक्टर को निकालने के लिए ये हॉर्नर्स रूल का फॉर्मूला है, राइट। TS प्लस 1 दैट इज T1 इज इक्वल टू D। सिंपल आपको ध्यान कैसे रखना है, TS माइनस TS प्लस 1 इंटू H प्लस TS प्लस M प्लस 1 मोड Q। अब क्या मतलब है इसका? दैट इज T1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 31415 माइनस TS प्लस 1 H, मतलब शिफ्ट करा आपने एक, ठीक है। तो T1H का मतलब क्या है? जो पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर मतलब 3, ठीक है। H मतलब जो हमारा उसका साइज चल रहा है 3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। दिस प्लस S प्लस M प्लस 1, S की वैल्यू 0 है, M5 6, T6 इज 2, तो यहां से वैल्यू निकल के आई T1 इज इक्वल टू, इसका होल मोड Q चल रहा है, तो T1 इज इक्वल टू 10 1415 प्लस 2, दैट इज T1 इज इक्वल टू 14152 मोड 13। इस तरह से हम आगे आगे की बिट शिफ्ट करते रहेंगे। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। दिस इज अ फॉर्मूला यूज टू शिफ्ट द कैरेक्टर विच आई हैव डिस्कस, दिस वाज अ फॉर्मूला ऑफ हॉर्नर्स रूल, राइट। फॉर स्ट्रिंग मैचिंग वर्किंग मॉडुलो इज Q। हमने कोई एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने वर्किंग मॉडुलो को ले रखा है Q। दिस इज द क्वेश्चन विच इज यूज्ड टू बी आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। हाउ मेनी स्पूरियस हिट्स does a Rabin-Karp-Matcher encounter in text? This
व्हेन द पैटर्न इज दिस। टेक्स्ट गिवन है, पैटर्न गिवन है, वर्किंग मॉडुलो गिवन है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पैटर्न मोड क्यू निकाल लूंगा। पैटर्न मोड क्यू निकाला, 26 मोड 11, दैट इज 4। अब हर दो लेंथ के कैरेक्टर को पकड़ते हुए 4 कैलकुलेट करते हुए देखेंगे, राइट। अब सिंपल, पहले मैंने टेक्स्ट रखा यहां पे, यहां पैटर्न रखा, शिफ्ट 0 है, 31 पिक किया। 31 मॉड 11 इज 9। हम किसकी सर्च कर रहे हैं, 4 की, ठीक है। एस को एक बिट शिफ्ट करा, 14 मोड 11 इज 3, यहां पे भी मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट 2 बिट शिफ्ट करा, 41 मॉड 11 इज 8, यहां पे भी इक्वल नहीं। शिफ्ट 3 किया, 15 मोड 11 इज 4। अब ध्यान दें, 15 मोड 11 इज 4। अब ये 15 है, वहां वो 26 था, ये मेरा स्पूरियस हिट है, कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, राइट। ऐसे मैंने एक और शिफ्ट करा, 59 mod 11 is again 4, but this is not matching with the pattern character, that is why this is an spurious hit, right. Next 92 mod 11 is 4, again there is an spurious hit, right. Next another shift, 26 mod 11 is 4, this is an exact match। तो एक एग्जैक्ट मैच हुआ, 3 स्पूरियस हिट अभी तक हो चुके हैं। S7 65 mod 11 10, not a match। Then 53 mod 11 9, not equal to 4। Then 35 mod 11 2, that is not equal to 4। So we can directly say that there are 3 spurious hits and 1 valid match। Agreed? अब इसी में देखें, अगर we keep on traversing the text and trying to match the P mod Q with T mod Q, there will be 2 cases। One, if P mod Q is equal to T mod Q, then there is an exact match। अब जब मैच हो गया दोनों का मैच होने के बाद उनके कैरेक्टर्स को मैच करेंगे इसमें। If P mod Q does not match with T mod Q, then there is an spurious hit, hence we have to search for an another। देखिए सीधी सी बात है, अगर पैटर्न और टेक्स्ट की हैश फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, then there are 2 possibilities that each pattern character matches with the text or it does not matches with the text। अगर मैच कर रही है then there is a valid match, अगर मैच नहीं कर रही there is a spurious hit। और दूसरी चीज, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है then using an Horner's rule we have to select another slab of a pattern ना, sorry, another slab of a text ना। So we will move to the next character of a text with the help of an Horner's rule। The complexity time of Rabin curve in the worst case is this। Now how this is, in worst case this is n into m। In worst case how is it in n into m? Because in each and every case if let's suppose क्यों ये कह रहा है n into m होगी, आप माने कि आपका हैश वैल्यू दोनों की सेम आ रही है बार बार, स्पूरियस हिट मान लो 10 आ गए, लेंथ थी 15, अगर हैश वैल्यू बार बार सेम आ रही है, कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे। आप तो देखें ना, अभी इस एग्जाम्पल पे हमने 3 स्पूरियस हिट और 1 वैलिड मैच था। जितने ज्यादा स्पूरियस हिट होंगे दैट विल मेक इट्स कॉम्प्लेक्सिटी n into m, और जितने ज्यादा स्पूरियस हिट नहीं होंगे दैट विल मेक इट कॉम्प्लेक्सिटी m। एग्रीड? प्लीज बी क्लियर, आई अगेन रिपीट, जितने ज्यादा स्पूरियस हिट होंगे मतलब पैटर्न और टेक्स्ट की हैश वैल्यू मिलेगी, उसके बाद उनके कैरेक्टर्स मैच नहीं होंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी n into m। और जितने कम स्पूरियस हिट होंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी n into m से m की तरफ मूव करेगी। एग्रीड? नाउ दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, एक या दूसरा कभी ना कभी हमेशा पेपर में आते हैं। तो हमें एक टेक्स्ट गिवन है ये, और पैटर्न गिवन है ये, और वर्किंग मॉडुलो गिवन है ये। फाइंड द वैलिड मैच यूजिंग रेबिन कार्प एल्गोरिथम। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या, पैटर्न गिवन है ना, तो पहले तो मैं इन स्टेप के थ्रू, आपने जैसे एल्गोरिथम देखी, अगर इस स्टेप के थ्रू भाई एन, पहले 3 स्टेप क्लियर, चौथा 5वां क्लियर, छठे 7वें 8वें से प्री प्रोसेसिंग स्टेप से पहले पी और टी नोट बताऊंगा क्या है। ठीक है, पी और टी नोट कैसे पता चल जाएंगे? ठीक है, पी और टी नोट कैसे, 3 मॉड, सबसे पहले क्या हुआ, ये पी क्या है, पी है डीपी प्लस पी आई मोड क्यू, और वो क्या है डी टी नोट प्लस टी आई मोड क्यू। जैसे अगर देखें यहीं पे नेक्स्ट
P जो है वो मेरा क्या है, P इज dp प्लस पी आई मॉड Q। इनिशियली P क्या होगा, दिस इज 0, दिस इज 3 मॉड Q, P हमारा 3 हो गया, फिर अपडेट होके क्या होगा 10 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर आया 1, 31 मॉड Q, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर 314 मॉड Q, नेक्स्ट कैरेक्टर। इसी में हम क्या करेंगे, dp प्लस सिंपल क्या होता जा रहा है, P1 P2 P3 P4, ये हमारे अपडेट होते चले जाएंगे और हमें रिटर्न हो जाएगा 31415 विद द हेल्प ऑफ हॉर्नर्स रूल। अब जैसे ही पैटर्न में ये आया और टेक्स्ट में पहले 5 कैरेक्टर आए टी नॉट में, टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट इज 23590 और पैटर्न इज व्हाट 31415। एग्रीड। अब आप यहां से ये समझ सकते हैं, जैसे 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 पहले वहां पे क्या थे, 2 कैरेक्टर्स थे ना, तो 2 कैरेक्टर्स का मोड लूंगा तो स्पूरियस हिट ज्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन जितना बड़ा पैटर्न होता चले जाएगा उतने स्पूरियस हिट कम होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। जितने छोटी लेंथ है पैटर्न की उतने चांसेस हैं स्पूरियस हिट ज्यादा होने के, क्योंकि वहां 2-2 लेंथ थी। जितनी पैटर्न की लेंथ बढ़ती चली जाएगी उतने स्पूरियस हिट कम हो जाएंगे, उतनी रैपिड कार्प एंड टाइम में होने लगेगी। प्लीज रिमेंबर, n इंटू एम तभी होगी जब पैटर्न की लेंथ छोटी है, जैसे जैसे पैटर्न की लेंथ बढ़ जाएगी उतनी वो n इंटू एम से n की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे 31415 का मोड निकालना है। 31415 का अगर मैं मोड निकालूं, मोड 13 ना, या मोड 13, तो ये सिंपली 7 आया। जब ये 7 आया, अब मैं अगले 5 कैरेक्टर पकड़ूंगा इसके, ये 5 टी नॉट, इस टी नॉट का मोड निकालूंगा, ये क्या आया 8। फिर एक बिट शिफ्ट करा ऐसे, हमेशा ध्यान रखना शिफ्टिंग कितनी इजी है। आप T1 लिखें 10, फॉर्मूला ध्यान रखें हॉर्नर्स रूल का, 10 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 23590 माइनस इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या 2 लिया आपने, इसको 20,000 माइनस कर दिया, 2 इंटू 10 की पावर 4, राइट। और इसमें प्लस कर दिया किसको भाई, 2 क्यों लिया था, पहली वाली T1, और इसमें प्लस कर दिया T6 को, मतलब 2। तो ये क्या हो जाएगा देखें, 10 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 3590 प्लस 1। नाउ व्हाट विल बी नेक्स्ट 35901 902, सॉरी दिस इज 2 ना, 35902। अब आप 35902 में 35902 आने के बाद आप फिर इसका मोड निकालें, फिर इसका मोड निकाला, मान लो इसका मोड आ गया 9। अगली बार इसको शिफ्ट करने के लिए आप सिंपल क्या कर रहे होंगे, आप सिंपल इसको ऐसे लिखें 35902 माइनस 3 सबसे पहले है, दैट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, और कौन सी नेक्स्ट बिट आने वाली है, दैट इज 3। तो सिंपल क्या प्लस में 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, ये 5902। एग्रीड, 5902 यहां से बचा, 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 59023 हो गया। 59023 हमारा स्टोर हो गया। 59023 के लिए फिर से हमने देखा ये 3 आया, फिर ऐसे ही बार बार शिफ्ट करते चले गए। तो मैंने हर किसी के स्पूरियस हिट यहां पे कैलकुलेट कर रखे हैं, और जैसे ही आपने देखा यहां पे जब मैं पहुंचा 31415 पे, तो इसका रिटर्न हुआ 7 और 7 मैच हुआ। उसके बाद मैं पैटर्न के हर कैरेक्टर को टेक्स्ट के हर कैरेक्टर से मैच करता रहा, मैच हो गए तो दिस इज वैलिड मैच। उसके बाद मैं फिर इसे आगे शिफ्ट करता रहा, और आपने देखा यहां पे जाके भी 7 आया इस पे। इस 7 में क्या हुआ, पैटर्न के हर कैरेक्टर को टेक्स्ट से मैच किया, लेकिन मैच नहीं हुए, दैट इज व्हाई दिस इज एन स्पूरियस हिट। सो बेसिकली क्या 2 कंडीशंस हैं, हम पैटर्न का हैश वैल्यू निकालते हैं विद सम मार्किंग मॉडुलो,
उसके बाद जो पैटर्न की लेंथ है उसकी लेंथ के हिसाब से टेक्स्ट की लेंथ को कंपेयर करते हैं, उसके हैश वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अब दो कंडीशन है, या तो हैश वैल्यू बराबर होगी या नहीं होगी। नहीं है बराबर तो हॉर्नर्स रूल के थ्रू एक एक बिट शिफ्ट करते चलेंगे और ये सर्च करेंगे कि कब बराबर हो। जैसे ही बराबर होंगी तो दो कंडीशंस हैं, अगर इक्वल हैं तो देयर इज अ चांस कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इक्वल होते के साथ ही आप क्या करेंगे, पैटर्न और टेक्स्ट के हर कैरेक्टर को मैच करेंगे। जब पैटर्न और टेक्स्ट के हर कैरेक्टर को मैच करेंगे, अगर वो मिल रहे हैं दैट इज अ वैलिड मैच, और अगर हैश वैल्यू सेम है और पैटर्न और टेक्स्ट के कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे देन दैट इज अ स्पूरियस हिट। और सिंपल, जितनी छोटी लेंथ पैटर्न की होगी देयर आर मोर चांसेस कि उतने ज्यादा स्पूरियस हिट हो और रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/m हो। लेकिन जितनी लेंथ हम पैटर्न की बढ़ाएंगे उतने कम चांसेस हैं कि स्पूरियस हिट हो, उतना ज्यादा हमारा फंक्शन सिक्योर होने लगेगा, उतनी हैश वैल्यू और हैश फंक्शन हमारा सिक्योर होगा, जिस वजह से हमारे वैलिड मैच ही निकल के आएंगे, स्पूरियस हिट कम हो जाएंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।